हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम आईएएस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पीवाईक्यू। तो इट विल बी लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू एंड इट विल बी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज कैसे है आई विल टेल यू, राइट। 10 ईयर्स दैट मीन्स फ्रॉम 2014 टू 23, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो के लिए आई हैव टेकन सम इनपुट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैंने खुद भी सोचा कि व्हाट ऑल थिंग्स दैट आई कैन गिव हेयर, है ना। तो जस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करना जो पहले मैंने कमिटमेंट किया था, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग यू मोर देन दैट। फॉर एग्जाम्पल here if you see here, right, what you will get in the PDF versus what you will get in the video. Now understand this thing, right? This is the first video of quantum mechanics PYQ, so that's why we are discussing these things, right? So in PDF I have given the trend, the chart is there, model answer will be there, and question bank. That means all the questions are segregated at one place, right? And after that you will get the model answer in the PDF. But why the videos are essential? First of all, these all videos will be free and it will be available on the YouTube, right? So what I want you guys to do, just download this PYQ. I have already uploaded on the Telegram channel, right? And then solve and send to the Telegram group. जो Telegram group है Quantum IS का, उसमें solve कर इसको भेजो. Now why I want this thing? देखो हमेशा ये आता है कि सर प्लीज अपलोड दी मॉडल आंसर, प्लीज पीवाईक्यू डिस्कस करना है, बट आई वांट टू सी कि तुम लोग कितना इसके लिए सीरियस हो, हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग हेयर, ठीक है। सो प्लीज अभी मान लो प्रीलिम्स के कारण इशू है, उस प्रीलिम्स के बाद या पहले अगर तुमने सॉल्व करके रखा है तो उसकी जो भी फोटोज है प्लीज अपलोड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, सो दैट इट विल बी अ पर्पस ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम योर एंड। नाउ what I will be giving in the video. In video we will seeing the analysis trend, right? So if it is your one of the favorite subject quantum mechanics, then how you should proceed. If it is not your one of the favorite subject or one of the weakest subjects, how should you proceed, right? Approach in the question. Now this is very important. Approach is very important. जब हम solution देखते हैं ना, after coming from the examination, when you watch the solution, जब examination के बाद solution की बात की जाती है, then it seems to be very easy, right? But what should be the approach in the examination hall for that question, that we should be working here also. Discussion of the question will be there. Evolution of question. Now evolution of question is something that you should focus upon. Why I'm telling you this, there are few topics in which question has evolved a very much, but there are few topics in which basic questions are also not asked. समझ आ रहा है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, एंड कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। सो अगर व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग अपार्ट फ्रॉम द पीवाईक्यू, इवन इफ यू सी द डीपीपी जो हमने फाउंडेशन बैच में किया, या फिर इवन इन द नोट्स दैट वी हैव स्टडीड इन द फाउंडेशन बैच, राइट। तो व्हाट वी हैव फोकस्ड अपॉन कि जिस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या जिसमें इवोल्यूशन ज्यादा हुए हैं, सो उसके हम लोग और डेप्थ तक जाएंगे। एक स्टेप, लेट्स से इफ दिस इज द यूपीएससी सर्कल, वी विल गो अप टू टिल दिस बाउंड्री, Are you getting it? But it is not a circular. यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि सारा तरफ से सेम तरीके से जा रहा है। यूपीएससी इज समथिंग लाइक दिस, समझ आ रहा है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी विल बी डूइंग दैट कि जिस क्वेश्चन में, जिस टॉपिक में ज्यादा इवॉल्व हुए क्वेश्चन, आई विल बी टेलिंग यू कि यू हैव टू डू सर्टेन मोर क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ठीक है। आंसर राइटिंग टिप दैट यू विल सी एंड दी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगेन। Now coming to the question, this is the trend analysis we are doing. So in last 10 year, this is the trend that is given. You can check it from the PDF also. What is surprising here to see that, let us divide it into two halves. Now based on जितना भी मैंने पढ़ाया है, right? Student find these topics to be a little bit easy. Wave particle duality, डी ब्रॉगली वाली चीजें, है ना। Schrodinger equation and expectation value, uncertainty principle, and particle in a box is the easiest among these. So if you see that 50% are question asked from these topics only, ठीक है। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को भी ठीक ठाक कर लो, right, then the question attempting
विल बी 50% अगर तुम्हारा क्वांटम मैकेनिक्स उतना मजबूत नहीं है तो। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल क्वांटम मैकेनिक्स इज वन ऑफ द मॉड्यूल जिसमें क्वेश्चन बहुत इवॉल्व हुए हैं। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इफ आई टॉक अबाउट द सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए की बात करें पेपर नंबर 2 में, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा इवॉल्व ये पेपर हुआ है, ना कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो व्हाट यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन हॉल, यू कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड लेस क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो अगेन इफ यू आर जस्ट वर्किंग ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो, अच्छे से इसका बेसिक भी कर लेते हो, देन ऑल्सो इट इज गुड। नाउ अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू टॉपिक जिनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, वी विल सी दैट ऑल्सो। Again, the highest percentage, more than 10%, goes to these: particle in a box, uncertainty principle, Schrodinger equation, expectation value, wave particle duality, right, and angular momentum, right? These are the prominent 5 topics, right, out of all the topics mentioned in the syllabus that you should be focusing more. ठीक है, पिछले बार हमेशा इससे ज्यादा आए हैं, तो probability ये है कि आगे भी इससे ही आएंगे। And these are also the most evolved topics. ठीक है, you will see in the question itself. चलो, this is the question bank that I am talking about. This is the syllabus. ये तुम्हें याद होना चाहिए। I have given 2014 से from 14 to 23. All the PYQs are there, and I will be discussing the model answer also. Right now, what I have planned here, right? What I have planned here. अरे हो जाएगा। This is wave particle duality. It has 7 questions that we will be doing in this video, right? Because it is going to on the video YouTube, और YouTube मैंने 3 घंटे क्लास डाले हैं, and you know that, right? YouTube algorithm doesn't work well with the 3 hours, especially मेरे जैसे न्यू चैनल पे। So what I will be doing, these 7 questions will be there, right? In the next video, Schrodinger equation and expectation value, right? Around 10 questions are there from here, right? Then uncertainty principle. So anywhere between 5 to 10 questions, anywhere between 5 to 10 questions, subject to the completion of a topic, that will be uploaded daily, right? So today is the first day, tomorrow you will get one video, day after tomorrow you will get one video, day after tomorrow you will get one video, right? Now coming to the, you will say ki how to access the PDF, that I am still thinking, right? Might be PDF will be available in hard copy as well, right? So we are working on it. So I will be taking around 4 or 5 more days to make a decision on the how to get the PDF, but video will be coming daily, today, then tomorrow, and so on, right? Chalo. So the first topic that is mentioned in this syllabus is wave particle duality, and we are going to solve questions from that topic. This is the question number 1. Now, what type of questions are asked from wave particle duality? Wave particle duality is one of those topics जहां से numericals आते हैं, right? Mostly they will ask numericals. They will ask simple mathematical deduction also, but that also I count in terms of numerical, है ना? एक छोटा सा प्यारा सा ये फॉर्मूला है h/p, इसके अलावा जो भी है I am considering it as a numerical. Theory लाइक कुछ है ही नहीं, right? Now, what UPSC has asked? सिंगल पार्टिकल दे कैन आस्क कि एक कोई पार्टिकल है, अलग अलग एनर्जीज है, एंड इसकी वेवलेंथ बताओ। ये यूपीएससी ने पूछ लिया है, राइट? आई हैव मेड द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर दैट आल्सो। सेकेंड इज द 2 पार्टिकल्स। नाउ दिस इज द आंसर राइटिंग अप्रोच दैट आई एम टेलिंग यू। अगर सुनना अच्छे से, इफ यूपीएससी इज गिविंग यू single particle or 2 particle, if it is single particle you have to focus upon the dual character of it. समझ में आ रहा है? If it is single particle, what is de Broglie hypothesis is about? It is about कि if कोई भी moving particle है, मतलब if anything has momentum, it will also has wavelength. That means it will have some kind of wave character in it, right? So understand this thing. अगर किसी के पास wavelength है and it is a single particle, that means the question is asked on the duality and you have to write on the duality aspect of that. What is that? अभी बताऊंगा मैं, but try to understand how do you frame it. So de Broglie wavelength of neutron and electron is given,
ठीक है, so it is not certainly the first case, it is the second case when two particles are there which has different inertial property, mass, momentum, these are different, right? That means UPSC apart from the dual characteristic also want a relative comparison between these two, and we will do a very very small comparison between these two कि न्यूट्रॉन कैसा है तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, समझ आ रहा है? दिस इज वेरी वेरी माइन्यूट थिंग दैट वी विल सी. फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इज दिस, नंबर ऑफ पार्टिकल पे. The second variety is situation. It can be relativistic and it can be non-relativistic. Sometimes both, right? So you have to understood कि क्या वो relativistic है या वो non-relativistic है. समझ में आ रहा है? First type of question that can be asked is single versus two particle. Second question can be asked is relativistic versus non-relativistic, right? I hope you guys know all the formula. So relativistic and non-relativistic का भी ग्राफ जो है मैंने conclusion में एक बताया है, right? So these are something जो मैंने बताया था, I will provide in the handout that all things are available in the format of question here itself. ठीक है? So relativistic or non-relativistic, you have to understand the case and tell. The third variety which is not asked till yet, ठीक है? पहला variety था single particle versus two particles. Second variety था relativistic versus non-relativistic. The third variety is charged versus neutral. Third variety. And the fourth variety is massive versus non-massive. Massive versus non-massive. Now understand, charge versus neutral, not only electron, proton shows the dual character, even the neutrons. So समझ आ रहा है? So they have asked about the neutral particle, that is the neutron, right? So charge versus the neutral particle, right? So understand this thing. We know that कि electron do diffraction. Electron क्या करता है? Diffraction करता है. Does proton also do? Yes. Does neutron do? Yes. There is one experiment conducted, right? Year and name of the experiment doesn't matter. The result matters that neutron also shows the diffraction. That means it also has a wave characteristics, right? Apart from that, massive and non-massive, जो मैं बोल रहा हूँ, everything matters, right? If you want to write, you can write it down. Massive versus non-massive में non-massive you know that, ठीक है? These are all small particles, so they are doing. Does massive particle also shows that if you take an elephant, let's say me, if you take a person, अगर I am मान लो कि मेरी 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी कम मोमेंटम है, तो do I have any wavelength? Yes, I will also have the wavelength, right? So मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में नहीं दिखता है, बट एक मैसिव पार्टिकल दैट इज C60, आई होप यू गाइज हैव हर्ड अबाउट, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसको बकमिस्टर फ्लोरेंस पे कहते हैं, C60, कार्बन 60, राइट? इट ऑल्सो शोज द डिफ्रैक्शन, राइट? सो नाउ यू अंडरस्टूड दैट हाउ द क्वेश्चन हैज इवॉल्व्ड, राइट? हाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड व्हाट यू कैन राइट इट, राइट? नाउ with the PYQ solution, you should also prepare how to write the introduction and conclusion. Understand? Find the de Broglie wavelength. जब भी क्वेश्चन दिखे, the first thing you should ask कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, and based on that you should write the introduction. This is my introduction. This is my introduction. Again, de Broglie hypothesis, wave nature, that is wavelength, is associated with every moving particle. ब्रैकेट में दिया मोमेंटम, समझ आ रहा है? This is what I call as a two-line definition. Minimum number of words, but everything is there. Mathematically, it is h by p, right? One thing that you forget to do in the classes, जब भी तुम टेस्टिस में लिखते हो आंसर, what people mostly forget कि ये lambda, h और p क्या है, right? Do you have to write in the examination? Yes, you have to write it. समझ आ रहा है? You have to write, you have to declare the variable. Please मेक इट अ वेरी पॉइंट. देखो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग, दे आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द फाउंडेशन बैच और द टेस्ट सीरीज, राइट? वहां पे ये सब चीजें मिलती है, बट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, प्लीज ट्राई टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट.
ठीक है, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू कि कहां कहां पे मार्क्स में काटता हूं एंड कहां कहां पे पॉसिबिलिटीज है मार्क्स कटने के, राइट। सो यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल, राइट, दीज आर द वेरिएबल्स लैम्डा, एच एंड पी, यू हैव टू डिक्लेयर दी वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल नीचे भी आओगे तो आई विल राइट वी क्या है, स्पीड है या पोटेंशियल है, यू हैव टू डिक्लेयर इट, राइट। बट कई बार क्या होता है, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, 8-9 है, अगर उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो 4-5 लाइन निकल जाएगा, राइट। सो वी यूज दिस थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी लाइफ सेविंग लाइन। सिंबल has their usual meanings. So you will, if you see the UPSC question, जब वो UPSC क्वेश्चन में वो खुद डिक्लेयर नहीं कर पाती वेरिएबल ड्यू टू द रीजन कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल आर देयर, राइट, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल के कारण खुद अगर डिक्लेयर नहीं कर पाती है तो इट राइट दिस थिंग, सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग। देखो अगर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, में लैम्डा वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, राइट। बट देयर इज अ वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, सो वेदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग। दीज थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू टीच फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, प्लीज ट्राई टू फोकस हियर। चलो, नाउ हियर एच इज इक्वल्स टू दिस, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ एक जो गलती होती है, सी देखो दीज आर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, वेरी वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू कैन मेक कैलकुलेशन मिस्टेक, इवन आई मेक कैलकुलेशन मिस्टेक इन दीज क्वेश्चंस, हो सकता है कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइट बी पॉसिबल, सो यू हैव टू ऑलवेज डबल चेक योर कैलकुलेशन, इवन जो मैंने कैलकुलेशन किया है उसके बाद चेक करो एंड ऑल्सो राइट इन द कमेंट की ठीक है कैलकुलेशन सही है, क्वेश्चन 1 2 3 जो भी है, प्लीज गिव योर इनपुट क्वेश्चन वाइज इन द कमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, हियर इट इज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इट इज नॉट इन द एसआई यूनिट, इट इज नॉट इन द जूल, वी प्रेफर टू राइट इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना। दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू जूल, दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज टू कन्वर्टेड इनटू जूल, राइट। इट इज गिवन हेयर, बट ये सब कुछ डेटा जो है वो तुम्हें याद होने चाहिए, राइट। सो फर्स्ट यू शुड कन्वर्ट हेयर, तो पहली गलती यहां होती है कैलकुलेशन मिस्टेक में, ठीक है। चलो नाउ अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी नो दैट कि एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड p इज व्हाट mv, तो p स्क्वायर बाई 2m बराबर e, p स्क्वायर बाई 2m बराबर e, तो p बराबर ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा h by under 2me, जस्ट पुट द वैल्यू, m इज मास, v इज स्पीड, k इज काइनेटिक एनर्जी। देखो मैंने 3 इधर 6 बार लिखा है, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन यूज सिंबल्स हैज देयर यूजुअल मीनिंग, बट मेरे पास स्पेस काफी था तो मैंने लिख दिया। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव कैलकुलेटेड। अब देखो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों की स्पीड क्या है, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब समझो इसे, दिस इज अ क्लास 12th टॉपिक, है ना। अगर यूपीएससी में 10 मार्क्स का पूछ रहा है 2 पेज में, सो इट शुड हैज अ मीनिंग एंड इट शुड बी रिटन इन अ वे। तो तुमने क्या किया, ये एक लेशन निकाल दिया, आफ्टर दैट you have put the value of neutron, it is coming out to be this। देखो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा लैम्डा और मास में कि heavier mass will have a lower lambda, heavier mass will have a lower lambda, ठीक है। now when you put the value of m, e and ln, right, देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, राइट, दिस यूनिट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग, जो भी मैं बता रहा हूं आंसर राइटिंग में, यूनिट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, विदाउट द यूनिट इट इज जस्ट अ नंबर, समझ में आ रहा है। सो वेदर इट इज अ लेंथ और इट इज अ फोर्स और द स्पीड, यूनिट इज गोइंग टू टेल, राइट। सो यूनिट कभी भी मिस नहीं करोगे। नाउ यू विल पुट द वैल्यू, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। नाउ माई आइडिया इज हेयर दैट हाउ यू विल कंक्लूड इट। अब अगर तुम ढंग से देखो नॉर्मली मैंने क्या देखा है लोगों को, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होता है, नहीं तो एक स्टेप और लिख देते हैं, एन एक लाइन में लैम्डा एन एंड लैम्डा ई, 3 लाइन्स, 3 to 4 लाइन्स एंड योर आंसर इज फिनिश, राइट। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे इफ यू आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई अंडरस्टूड की कंक्लूजन, तुमसे सीख क्या रहे हो, राइट, व्हाट आर यू गेटिंग इट फ्रॉम हियर। So what I have written in conclusion, from above 2 cases we can say that for the same kinetic energy,
दिख रहा है? फॉर अ गिवन काइनेटिक एनर्जी more massive particle will have higher momentum. More massive particle will have higher momentum and lower wavelength. ठीक है? So it is in line with the question, right? इसके अलावा अगर तुम ये नहीं लिख पाते हो तो these are the certain things that you can write कि application of wave particle duality in quantum entanglement, microscopy, holography, spectroscopy, condensed matter physics, right? So जहां जहां uses है हमारे फिजिक्स में यहां लिख सकते हो, right? What else you can write? देखो यहां तक भी तुम अगर लिख रहे हो आंसर कंक्लूजन में, इट इज वेल एंड गुड, ठीक है? इफ यू राइट टिल हेयर आई विल गिव यू 6 out of 10, ठीक है? 7 being the highest marks, but when you make the graph I will give you the extra marks. दिख रहा है? From the graph it is very very clear that at a particular E, higher the mass, sorry, lower the mass, higher is the wavelength. So without studying this also और ऊपर का चेक किए हुए, फ्रॉम दिस ग्राफ यू आर शोइंग दिस थिंग, राइट? सो प्लीज पे वेरी अटेंशन कि बहुत ही छोटे छोटे ग्राफ बनते हैं इसके, है ना? मोस्टली हाइपरबोलिक ही नेचर बनता है इनका, यू नो दैट, है ना? लैम्डा नीचे ई आएगा या पी आएगा जो भी है, सो मोस्टली दे आर हाइपरबोलिक इन नेचर, वेरी वेरी इजी टू ड्रॉ, बिना कुछ सोचे यू कैन डू इट. इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड टू ड्रॉ दिस ग्राफ इन द एग्जामिनेशन, ठीक है? इतना रंग बिरंगा तो बनाओगे नहीं एग्जाम में, है ना? Now, this is what I have added. If someone asks you, comment on the dual character. यूपीएससी ने पूछा है, अभी आगे देखेंगे हम लोग. यूपीएससी आस्क कमेंट ऑन दी डुअल कैरेक्टर. इफ आई एम सेइंग यू डुअल कैरेक्टर और तुम बोल रहे हो कि वेव भी है और पार्टिकल भी है, ये तो क्लास 12 के बच्चों को भी पता है. What you basically understood by the dual character, right? That means it has a particle nature as well as wave nature. And उसको थोड़ा सा और खोल कर लिखेंगे, right? कि when it is detected or interact with other particle, it behave as a particle. जब उसको तुम ढूंढ लोगे, जब वो इंटरैक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, it will behave as a particle. But the probability of finding at any place is governed by the wave character, right? याद करो, ये देखा था एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन गन था, है ना? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट, इफ यू रिमेंबर. So if you see one electron at a time, it will behave as a particle. But if you take all the electron at one time, you will see the interference diffraction pattern here. ठीक है? So I think you have studied this thing in the class also, है ना? So जो भी पढ़ा है, just I am writing this thing in the statement format कि probability of finding at a place is governed by the character, right? If you want to write the phenomena, you can write the diffraction, interference, and if you write here any example, if you want to write photoelectric effect, right? Crompton effect. So here all those what happening in Crompton photoelectric effect, दो जगह कोलिजन हो रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ पार्टिकल. सुनते हो ना कि पार्टिकल जहां पे बिहेव करता है उसका एग्जांपल ये दोनों है. एंड हेयर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन बोथ आर द प्रोबेबिलिटी, ऑल दोज टुगेदर इन अ प्रोबेबिलिटिक जोन, दीज आर द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न. ठीक है? सो प्लीज डू फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ठीक है? From the very first day when I have started teaching, I am focusing on these things, and trust me, in last 2-3 years I have seeing that कि ये pay कर रहा है, right? These things are reflecting in the results and in the number. ठीक है? अब देखो ये जो चीज है, you have made a template, ये तो वही का वही आ गया, simple. You have just seen that कि electron is confined to move between 2-digit walls separated by a 10 meter. Compute the de Broglie wavelength represent the first allowed 3 energy state of the electron and the corresponding energy level. Basically it is a question from the particle in a box. ठीक है? So ideally it should be there, but यहां पर मैंने एक रीजन से डाला है. Here this move between 2-digit walls separated by this thing, it is acting as a situation, and the phenomena that is asked in the question is the de Broglie wavelength, right? So they are focusing more on the de Broglie wavelength, and it is acting just as a situation. समझ आ रहा है? So that's why we will start this question by defining the de Broglie wavelength, and then we will, यहां तक मैंने सेम लिखा है, and from here we will explain the situation and बताएंगे कि हमें पता है कि ये situation क्या है, particle in a box है. So what we will say that here, that कि electron is confined by the impenetrable. This has a meaning, impenetrable
वो दैट मीन्स उसके बीच में। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइमर, जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, जो पढ़ चुके हैं पूरा, उन्हीं के लिए फायदेमंद है ये चीज। आई डोंट सजेस्ट कि तुम फर्स्ट गो में इन चीजों को करना स्टार्ट करो, राइट? इट इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल। फर्स्ट फिनिश द सिलेबस, उसके बाद इन चीजों को देखो। तो यू नो दैट हेयर द पोटेंशियल इज जीरो, एंड इसके बाद ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, राइट? तो यूजिंग दैट इट इज अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, राइट? नाउ अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न, कि तुम्हें कितना ड्राइव करना और कितना ड्राइव नहीं करना है, राइट? दिस I have not derived. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, there is no scope of deriving this thing, so I have just used it here, right? अब देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी ब्रॉगली compute the de Broglie wavelength of the representing the first 3 allowed energy states of the electron and the corresponding energies, right? You have to find the energy as well as the wavelength. बहुत बड़ी बात थोड़ी है, you got the energy, momentum निकाल लोगे 2me and then you can put it. If you got the E, ठीक है, just put it, so you will get, देखो ये दोनों always write in these formats, वेरिएबल्स के टर्म में लिखा करो, बाद में तुम भले ही उसको आंसर लिख दो, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, तो ई एंड लैम्डा, ठीक है? आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। ई तुम्हें याद होगी, दिस इज द फॉर्मूला, यू नो, राइट? जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, पी इज व्हाट, 2me, पुट करो, ये कट के कुछ ऐसा आता है, राइट? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, एक चीज समझने की कोशिश करो, दैट लैम्डा इज 2l/n, so wavelength associated with the particle decreases as we increase the energy level. यहां पर समझना, if you will search this in Google इसका उल्टा बताएगा। Why? Because Google talks about the wavelength of photon. सुनना अच्छे से, this is नहीं ठीक है, सॉरी, I have mixed with the other question, ठीक है, समझो यहां पर। Now L is given and M is given. If you put here only you need what, M and L. If you put the M and L value, you will get this. अच्छा एक चीज याद रखना, try to write in the EV if possible. अगर तुम जूल में लिख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, but if possible write in both joule and EV in the final answer. अच्छा लगता है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए लिखना, ठीक है? अच्छा आफ्टर राइटिंग दिस आंसर लिखने के बाद मुझे ये ध्यान आया था, यू कैन मेक वन थिंग ऑल्सो। इसमें क्या पूछा कि फर्स्ट 3 स्टेट, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, है ना? सो फर्स्ट n की वैल्यू चेंज करनी है, n1 n2 n3 एंड यू हैव टू राइट द वैल्यू, यू कैन इजीली राइट इट। ऑल्सो यू कैन व्हाट डू, अगर एग्जामिनेशन में स्पेस कम मिले, यू कैन ड्रॉ अ टेबल, है ना? n1 e1 लैम्डा 1, n2 e2 लैम्डा 2, n3 e3 लैम्डा 3, ये सारी वैल्यू लिख दो एंड यू नीड टू कंपेयर देम, है ना? ये एनर्जीज आर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, वेवलेंथ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड आफ्टर दैट you have to analyze this thing, that when n increases there is increase in the energy levels and associated energy, but the wavelength shows decreasing trend with the increasing energy, right? Justifying the de Broglie hypothesis, lambda equals to h by p, p is under 2me, e बढ़ेगा तो lambda घटेगा, है ना? तो एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट, नॉन डिजेनरेट एंड क्वांटाइज। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है कि जो तुम एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हो, दीज आर नॉट इन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, right? And whenever you write any energy, you have to write its characteristic also. So in one line you can write it. If you want to skip, you can skip it. It will not make much sense. If you want, you can skip it. If you want to write, you can write it. Now more important thing is this conclusion. अच्छा एक चीज याद रखना, when I'm making this E1, E2 and E3, you can see the gap. तो गैप देख कर लगना चाहिए कि उतना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम काउंट करो, बट इट शुड बी लाइक दैट कि अगर ये 3 है तो चाहिए 5 तो होगा, इतना अंदाज होता है हम सबको, है ना? वी शुड फोकस ऑन दैट। नाउ सी, दिस इज द E1, दिस इज द E2, इट इज व्हाट 4E1, E3 इज व्हाट 9E1, so what is the difference between them? It is 5E1. What is the difference between E1 and E2? It is 3E1, right? Apart from that you need to write out कि lambda 2 कितना था। so lambda 1 was 2l, देखो अच्छे से, lambda क्या था 2l/n, lambda was 2l/n, so lambda l was 2l/n, that means lambda 1 will be 2l, देखो ये l में कितना आ रहा है, ये lambda/2।
अगर ये 12 होता तो ये पूरा पूरा होता, राइट। तो दिस इज द वे यू शुड ड्रॉ। अगर स्टैंडिंग वेव याद होगा थोड़ा बहुत पेपर 1 का, तो यू कैन इजिली ड्रॉ इट, बहुत बड़ी बात है ही नहीं इसमें। नो दीज आर इजी क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें। चलो देखो, नेक्स्ट इज estimate the de Broglie wavelength of the electron orbiting in the first excited state of the hydrogen atom, first excited state। अब देखो यहां पर क्या है लिखने की बात, इतना तो तुम लोग कॉपी पेस्ट मार दोगे, डी ब्रॉगली भाई साहब ने ये बोला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये है कि इसके आगे कैसे बढ़ेंगे। तो व्हेन यू, जब तुम इसके आगे बढ़ोगे, देन यू हैव टू राइट डाउन कि कौन सा मॉडल तुम ले रहे हो। हाइड्रोजन एटम तुम्हारे सिलेबस में बहुत सारे मॉडल है ना, तो विच मॉडल आर यू प्रेफरिंग हेयर, राइट। या फिर अगेन इवन इन द क्वेश्चन आल्सो इट इज हिडन दैट यू हैव टू अंडरस्टूड द बोर मॉडल, राइट। नाउ बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन द 3 पोस्टुलेट, जो पोस्टुलेट काम किए वो हम लिख देंगे यहाँ पे। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ ये। तो तुम दोनों पोस्टुलेट लिखोगे, should not skip it। ये छोटा सा डायग्राम अगर चाहो तो बना सकते हो, राइट। एंड आफ्टर दैट आई नो एवरीवन नो दिस फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ आर एंड वी। तो तुम्हें इतना लिटरेचर जो है वो लिखना होगा, यू हैव टू राइट दैट मच ऑफ लिटरेचर एंड असर्टिव सेंटेंसेस कि ये दोनों पोस्टुलेट है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, बट यू जस्ट हैव टू राइट कि अच्छा दीज आर द इंस्पिरेशंस। इट इज अ नियो क्लासिक अप्रोच, बोर मॉडल है ना। इट हैज द कंपोनेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आल्सो एंड द क्लासिकल अप्रोच आल्सो। ऊपर वाला ये पूरा क्लासिकल है एंड दिस द क्वांटम, सो इट इज अ न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो यूजिंग दैट वी और आर की वैल्यू तुम्हें पता है, इफ यू पुट ऑल दिस टुगेदर, इफ यू पुट ऑल दिस टुगेदर, लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट, h by mb, इफ यू पुट इट टुगेदर इट इज कमिंग आउट टू बी 3.324 n। ये तुम्हें याद होना चाहिए, सुनो, बोर मॉडल की जो रिजल्ट्स है ये तुम्हें याद होने चाहिए। अगर तुम ये एग्जाम में इतना लिखना स्टार्ट कर दोगे, देन ऐसे आंसर नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, ठीक है। एक डाउट जो स्टूडेंट्स का आता था मोस्टली मेरे पास कि सर ऐसे क्वेश्चंस क्या एग्जाम में उस टाइम फ्रेम में लिखना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, सुनना अच्छे से। यहां तक मुझे बताओ, देखो फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ भी लिखा है हमने जो याद नहीं हो हमें? फर्स्ट पेज पूरा याद करना था, सेकेंड पेज पूरा याद करना था टिल यहां। इसके बाद हमें कैलकुलेशन क्या करना है, यहां तक तो हमें याद होना चाहिए था बोर मॉडल तक। उसके बाद ये पुट करने के बाद क्या आएगा, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। और ये भी कैलकुलेट क्या करना है, यहां से लिख दो, यहां पे तुम्हारे पास है ही सारा कुछ, है ना। तो जस्ट दिस मच एफर्ट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। ये दो तीन लाइन का है एफर्ट। ये जो 2 लाइन का एफर्ट है, 2-3 लाइन का एफर्ट, दिस इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली, दिस इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अगर ऊपर वाला सारा कुछ याद है, ये करने में तुम्हें 1 मिनट लगेगा, राइट। नॉट इवन 7 मिनट, यू विल रिक्वायर ओनली 4 to 5 मिनट टू राइट दिस आंसर, 4 to 5 ओनली, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। बाकी सब याद रखना है। Now, wave particle duality of electron has made possible the neoclassical approach of Bohr model and gradually advancement of the more surgical atomical। ये तो तुम लोग लिख ही लोगे यार, इस टाइप के बात तुम लोग तो लिख ही लेते हो, ठीक है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या क्या एप्लीकेशन है, जो मैंने एप्लीकेशन ऊपर लिखा था वो हटाकर मैंने ये बाकी यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो ऑलमोस्ट 10-12 एप्लीकेशन मैंने तुम्हें दे दिए डुअल पार्टिकल के। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ आता है, कंक्लूजन को कैसे एंड करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंडिंग जो है ब्लंट दिखती है, तुम लिखोगे 10,000 नैनोमीटर, वहीं पर आंसर खत्म। तो एक प्रॉपर दिखना चाहिए कि एंडिंग भी हुई है। कुछ नहीं समझ में आया तो एप्लीकेशन लिख दिया करो इस तरीके से। वेव पार्टिकल हैज मेनी एप्लीकेशन एज इन द फील्ड ऑफ एमआरआई, जो भी है सारा कुछ, ठीक है। दिस इज व्हाट आई प्रेफर कि तो ये सब जो बहुत छोटे ग्राफ है, वेरी इजी ग्राफ, बिना सोचे तुम बना सकते हो। तुम्हारे यहां दिख रहा होगा लैम्डा इज इक्वल टू एन, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 1, खत्म। यार तुम लोग समझ रहे हो तुम्हारे लिए कितने छोटी सी ग्राफ है, बट ये आंसर्स में कितना अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है, समझ आ रहा है। सो द जर्नी यहां तक लिखोगे, माइट बी यू आर गेटिंग 6
माइट बी यू आर गेटिंग 6, अगर तुम ये सब बनाते हो तो हो सकता है 7 मिल जाए। एक मार्क्स भी अगर मिल गया 10 क्वेश्चंस में, यू नो दी चमत्कार क्या होते हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिखने में जितना अच्छा लगता है, जितना आसान है, उतना ही टफ है इसको लिखना, उतना ही टफ है सोचना। और ट्रस्ट मी, ये जब पहली बार एग्जामिनेशन में आता है, इट इज द टफेस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। क्या किया जाएगा बताओ? लिखा है सो दैट द मास एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल कैन बी गिवन बाय m इज इक्वल टू h by lambda v and p is equals to h by lambda respectively, where h, lambda and v are Planck's constant, wavelength and velocity of the particle respectively. Comment on the wave particle duality from these relation. डी ब्रॉगली नहीं लिखा, lambda equals to h by p, तुम उसको उल्टा करके थोड़ी लिखोगे दो लाइन में। So what you have to do, there is two way of writing this thing, but I prefer जो मैंने करवाया यहाँ पर, because it is given in one of the books, सत्य प्रकाश में आई थिंक है ये चीज, राइट। तो मुझे लगा ये सही है। इससे पहले आई यूज टू डू इट फ्रॉम द श्रोडिंगर इक्वेशन थिंग, बट द थिंग दैट आई हैव गिवन हियर यू कैन फॉलो दैट, ठीक है। नो इट्स अ वन लाइन क्वेश्चन, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द एग्जामिनर। उसने बोला 10 मार्क्स में लिखना है तो 10 मार्क्स में लिखना है, ठीक है। भाई ने बोला करने का तो करने का, वो वाला बात है। तो 10 मार्क्स 2 पेजेस तो यूटिलाइज करना है, एटलीस्ट 70% तो पेज यूटिलाइज करना ही है तुम्हें, है ना। यू कैन नॉट राइट 2 लाइन में और हो गया हमारा काम, ठीक है। वैसे तो कम से कम 30-40% क्वेश्चन ऐसे होंगे पेपर 1 के जो तुम्हारे आधे पेज में खत्म हो जाएंगे, है ना। सो देखो व्हाट यू हैव टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पिक अप कीवर्ड्स, जैसे तुम करते हो जीएस में, सेम हियर। इट इज गिवन एज क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल, ये दिखा और कुछ तुम्हें दिखा नहीं है, बाकी सब वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, ये सब चीजें हैं। So we should focus upon that only. So what is a quantum mechanical particle? Quantum mechanical particle are indistinguishable particle that follows quantum mechanical, that follow principle of quantum mechanics and can be represented by a matter wave function. मैंने पहले लाइन में डिफाइन कर दिया कि एक ऐसा पार्टिकल हम लोग ढूंढने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जो मैटर वेव फंक्शन को जस्टिफाई करता है। वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द डी ब्रॉगली, वी आर डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग हियर, ठीक है। Now considering two frame S1 and S2 which is moving in positive x direction with velocity v, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, है ना। सो फ्रॉम देयर इफ आई राइट वेव फंक्शन इन दिस वे, इफ आई राइट वेव फंक्शन एज दिस, इफ दिस इज माय वेव फंक्शन इन एस फ्रेम, ठीक है, you can write it sinusoidal है। we are assuming, we are considering, समझ में आ रहा है, ठीक है। there is a way of approaching these questions, ये एग्जाम में डायरेक्टली जाकर सॉल्व नहीं होगा। तो assuming कि sinusoidal है, ऐसा मान लिया, तो क्या कर सकते हैं, when you will shift the frame, the psi will become sin naught 2 pi mu and the Lorentz transformation of time, समझ में आ रहा है। इट इज दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम। आई होप यू नो दीज। व्हेन यू पुट इट, लेट अस अज्यूम वी कैन राइट इट लाइक ये म्यू अपॉन 1 अपॉन वी स्क्वायर, इसको हमने म्यू डैश मान लिया। देखो ये इस पूरे वाले को हमने क्या मान लिया, न्यू डैश, एंड इस वाले को टी स्क्वायर वी को नीचे लाकर हमने यू डैश मान लिया। तो इफ यू पुट इट हेयर, इफ यू पुट दिस फ्रॉम द रिलेशन, कहां चला गया, हाँ ठीक है। तो हमने इस वाले में इसको लिख दिया वी डैश टी एक्स अपॉन म्यू डैश, दिख रहा है तुम्हें, ये म्यू अपॉन यू इज म्यू डैश एंड वी एज इट इज एक्स अपॉन सी स्क्वायर इज समथिंग लाइक दैट, सी स्क्वायर बाई वी इज म्यू डैश, राइट। सो व्हेन यू पुट दीज थिंग्स, इक्वेशन कुछ तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो, नो वी नो दैट E is equals to m naught c square. We are writing the m naught हटा देना यहां से, m naught is not needed. एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, सॉरी, these lights are reflecting so I barely see anything here, ठीक है, तो मुझे दूर जाकर देखना होता है। yes, so energy can be written as if it is at rest, सुनना अच्छे से, if it is at rest s frame में, so m naught c square, rest mass m naught c square, Planck's याद है, h nu, समझ में आ रहा है, energy given by this can be written as h nu।
This is I am writing in S frame. Now nu is called m naught c square by h. What you can write here, इतना तो हमें दिख गया यहां से. Now let us expand जो हमने ऊपर लिखा था. देखो ये हमने ऊपर लिखा था कि let us assume nu dash is equals to nu by 1 upon 1 minus v square plus c square. What is nu? From here it is m naught square by c square. अब देखो m naught square upon 1 upon v minus c square, ये तो मास है, mass of any particle at a speed v from the s frame. If you put it here, it is m upon c upon h square, right? Now पहले समझ लो फिर बताऊंगा एक चीज. You know that कि वेवलेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? इट इज वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द वेलोसिटी? u डैश. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? न्यू डैश. दोनों की वैल्यू निकालिए, पुट करोगे h अपॉन mv. ये तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, h अपॉन mv h बाई p. ठीक है, बाकी जो है हमने वही जो पिछले का था कंक्लूजन उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है. नाउ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है, सुनना अच्छे से. ये लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv, या जो क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है m इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा v और p बाई h लैम्डा v, ये जो शो करने के लिए बोला गया है, सुनना अच्छे से, वी आर ड्राइविंग इट फ्रॉम अ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, ये कोई थ्योरम नहीं है, राइट? तो दीज ऑल आर जुगारू आंसर्स. ठीक है, दैट यू हैव टू राइट इन एग्जामिनेशन एंड एज इट इज रिटन बाय मेनी ऑफ द ऑथर्स. ठीक है, एक तो सत्यप्रकाश बक्का है, एक दो और किताब मैंने देखा है. तो एज दे आर एक्सेप्टेड बाय मेनी इंडियन ऑथर्स एंड टीचर्स, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा इस वे ऑफ मैथमेटिकल डिडक्शन कह लो हाइपोथेसिस का इसको. ठीक है, नाउ हाँ, एक चीज मैंने एक चीज और डाला, ये देख लो, ये ऊपर वाले को लिखा है, ऊपर वाले का एक वेरिएशन है ये. ठीक है, तो ना ये ऊपर वाले का एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि पार्टिकल और वेव आर कॉम्प्लीमेंट्री बट एक्सक्लूसिव. कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ रहा है कि अगर वेव है तो पक्का वो पार्टिकल भी है उसके अंदर नेचर, अगर वो पार्टिकल है तो पक्का उसके अंदर वेव नेचर भी है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब वेव है तो पार्टिकल है, पार्टिकल तो वेव है, बट दे आर एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एट वन टाइम, एक टाइम पर या तो वो क्या होगा, इधर इट कैन बी अ वेव और इट कैन बी अ पार्टिकल, नॉट बोथ. समझ आ रहा है क्या? या तो वो वेव होगा या पार्टिकल होगा. फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यू एवरीवन नोज दैट कि आई टीच इन 2 कोचिंग्स, है ना. एक तो क्वांटम आइज दिख रहा है, दूसरे का नाम आई हैव मतलब नहीं बताऊंगा, बट अगेन लेट्स से एक्स कोचिंग, एक्स एंड क्वांटम आइज. सो व्हेन आई एम टीचिंग इन एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट, आई एम शिवम द एज अ फैकल्टी ऑफ एक्स ओनली. Here nothing of quantum IS hampers there, और कुछ भी वहां पर इंटरमिंगल नहीं होता है, राइट. बट when I am here, right, I am just behaving as a physics faculty of quantum IS. अब तो इकोनॉमी भी स्टार्ट हो रही है हमारी, खैर. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एट डिफरेंट पोजिशन, एट डिफरेंट इंस्टेंसेस, एट डिफरेंट phenomena, one substance can behave either as particle or as wave, not both at the same time, right? And that is written as प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी. समझ में आ रहा है? ये सब लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगता है. समझ आ रहा है? ठीक है, ये सब अगर लिख दिया जाता है तो लगता है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छे से पढ़ा है उसने, उसको बस ये नहीं पता है कि हाँ लैम्डा और h बाई mv और कैलकुलेट किया और लिख दिया, राइट. सो यू हैव टू राइट इन अ सोफिस्टिकेटेड वे. अच्छा एक चीज और देख लो यार, ये बताने से पहले, इकोनॉमी वाला आया है तो देख लो. ठीक है, हाँ, गो टू द quantumize.com. ठीक है, इकोनॉमी जो प्री का है, टुडे इज आई थिंक, आज डेट कितना है, शायद आज 29 या 30 है आई थिंक, जो भी है. टुडे इज सैटरडे 30th फ्रॉम द 1st of April. ठीक है, जब भी तुम देख रहे हो, है ना, 1st of April 2024. From 1st of April 2024 we are going to start this economy वाला thing. It is divided into 9 topics. ठीक है, 2 मिनट का प्रचार रहेगा यहाँ पर. ठीक है, it is divided into 2 topics. Just click. इसमें सब कुछ है, इसमें यू विल हैव वीडियोस, यू विल हैव नोट्स, यू विल हैव PYQ, MCQ, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी इशू, एवरीथिंग इज हेयर, राइट. इफ यू सी हेयर, देखो
I have divided into 9 themes. ठीक है, even if you qualify the prelims and if you have to take it from here only कि इकोनॉमी को कैसे बनाना है मेंस के लिए, you can easily use these themes method. ठीक है, so first theme is basics of economy, then all those things पढ़ लेना. What I am trying to tell you कि this course is completely free, right? और ये तुम ही लोग के टाइमिंग पर हो रहा है जो चल रहा था. It is 6 AM to 8:30 AM. 6 AM to 8:30 AM. It will be a live, क्योंकि अगर बहुत साल से देख रहे होगे तुम तो राइट, आई एम बिट लेजी अबाउट रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना. लाइव फिर भी हो जाता है. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इज वेरी 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 बोरिंग थिंग. जो भी मैं कर रहा हूँ, इट इज अ वेरी वेरी बोरिंग थिंग. लाइव इंटरेक्शन आई लाइक. सो इट विल बी अ लाइव क्लासेस, है ना. एंड द फर्स्ट 5 क्लासेस थिंग्स आर गिवन. दिख रहा है तुम्हें? फर्स्ट 5 क्लासेस आर गिवन. सो द फर्स्ट क्लास विल बी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, सेकेंड मैक्रो, नेशनल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन, एंड फ्रॉम द last class will be of the budget, right? So Monday to Friday 5 classes will be there. What you have to do if you are a student of Quantum IS, just enroll, log in करना, उसके बाद ये enroll पे आ जाएगा ऑप्शन, right? If not, you have to click on enroll for free. If you have account, just fill the detail, you will be enrolled. Otherwise you have to sign up कर लो या sign in कर लो. पता ही होगा तो क्या बताना है तुम लोगों को. खैर, coming to this question, the course name is Concept of Economics, and we will try to implement all the physics we have learned in our life to understand the economy. ठीक है, खैर चलो. अब देखो दिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को तुम कहाँ प्लेस करोगे? ये क्वेश्चन सीधा तुम्हें दिखा कि पेपर नंबर 2 के सेक्शन नंबर ए में तुम्हें कहीं दिख रहा है. इन विच टॉपिक विल यू प्लेस इट? डी ब्रॉगली वाली कुछ भी नहीं है. So if you look it very closely, you will see that they are asking how many photons are emitted per second. Emission of light, radiation, photons emission. That means they are talking about the de Broglie वाला hypothesis. उसमें भी कौन सा पार्ट? पार्टिकल वाला पार्ट. समझ में आ रहा है? So that's how we will connect it. अब जो डायरेक्टली de Broglie given नहीं है, ना ही wave particle duality का concept है. So what we will do here, we will start with the definition of photon. Photons are elementary particles that is a quantum of electromagnetic field. I know, तुम्हें पता है शायद. Photon also possesses wave particle duality, hence its wavelength and energy is given by this. समझ में आ रहा है? मैंने तुरंत में इसको इंटरमिंगल करके यहां पर लिख दिया, राइट? दिस लेवल ऑफ आंसर राइटिंग आई रिक्वायर फ्रॉम यू गाइस. ठीक है, कि इट शुड बी गिवन एज अ फ्लो, कॉन्टिन्यूटी दिखना चाहिए, राइट? वेयर लैम्डा इज दिस. ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. क्वेश्चन तो बस इतना ही है कि 150 वॉट का लैंप है. 150 वॉट का लैंप है, 8% एनर्जी लाइट एनर्जी बनती है. तो लाइट एनर्जी कितनी बन जाएगी? 12 वॉट. 8% ऑफ 150 कितना आएगा? 12 वॉट. 12 वॉट लाइट है, समझ रहा है? मतलब 12 जूल पर सेकेंड. हर एक सेकेंड में कितना? 12 जूल. तुम एक ब्लू लैंप गिवन जिसकी लैम्डा गिवन है, यू नो एससी बाई लैम्डा. डिवाइड कर दो, आंसर है. एक लाइन का आंसर है. क्लास 12 क्लास 9 में भी ये पढ़ाया जा सकता है. बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिस्पेक्ट भाई 10 मार्क्स एंड 3 पेजेस 2 पेजेस. ठीक है, तो उतना में आना चाहिए करने के लिए. तो हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ेंगे समझना चाहिए. हमने ये तो लिख दिया कि लैम्डा और एच बाई पी और ई और एच नहीं होगा. इससे काम नहीं बनेगा. यहां पे नंबर ऑफ फोटोन्स की बात हो रही है, राइट? देयर इज वन मोर थिंग एसोसिएटेड हियर, दैट इज द क्वांटाइजेशन. एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी सेज दैट कि जो भी टोटल एनर्जी होगी into n करो, n is what? Number of photons. भाई साहब, we have different photons, different number of photons. एक फोटोन अगर इसके पास 5 जूल है और इसी वेवलेंथ का फोटोन हमारे पास और भी है, तो सबके पास कितना होगा? 5 जूल. सुनना अच्छे से. अगर मैं ये बोल रहा हूं कि सारे फोटोन की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम है, तो 100% ये श्योर है कि हर एक के पास 5 जूल ही होगा. क्या होगा? 5 जूल, राइट? सो अगर ये मिलाकर 50, अगर 25 जूल है हमारे पास एनर्जी, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट कि हमारे पास 5 फोटोन है वैसे. और ये कहां से आता है? इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, राइट? वेरी वेरी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट.
ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी दैट E इक्वल्स टू n इंटू एच न्यू। ठीक है, व्हाट आई हैव चेंज हेयर कि मैंने कैपिटल स्मॉल n को कैपिटल N कर दिया और कैपिटल N इज नंबर पर सेकेंड। तो पावर इमिटेड बाय द बल्ब इज 150, 8% कन्वर्ट होता है तो 12 वाट। अच्छा एक चीज सुनो, मैंने कुछ कुछ लैंग्वेज इसलिए भी लिखा है क्योंकि जब भी तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में जाएगा, प्रिंट फॉर्मेट में जाएगा, तो व्हेन यू आर रीडिंग इट तो कई बार क्या होता है कि वीडियो देखने का मन नहीं करता या वीडियो नहीं मिलती है। तो इफ यू आर सीइंग इट ऑल्सो तो तुम्हें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है। ठीक है, यू कैन स्किप स्मॉल स्मॉल पार्ट। ये सब पार्ट है तुम हटा सकते हो, सीधा पावर इन द फॉर्म ऑफ लाइट सीधा इतना लिखोगे तो ये लाइन हटा सकते हो, बेसिक बेसिक। ठीक है, अगर इसका मॉडल आंसर समझ में आ रहा है, इसका तुम 80% भी उतार कर ले आओगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। यस, सो वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, सो व्हाट आई कैन राइट n इंटू एस सी बाई लैम्डा इज व्हाट 12 वाट। यहां से n निकाल लो, लैम्डा पता है, एस की वैल्यू पता है, तो इफ यू टेक दैट एज एक्सपेक्टेड इट विल कम आउट 2 इंटू 10 पावर दिस। याद रखना जब भी कोई नंबर लास्ट में आ जाए ना तो वो जरूर बताया करोगे छोटा नंबर या बड़ा नंबर है। ठीक है, so what I have written here, for the above calculation we can say that even a small percentage of energy emitted as light, LIGHT होगा, यहाँ पे TH को HT कर देना। ठीक है, प्लीज ये सब करेक्शन कर लिया करो। So from the above calculation we can say that the even a small percentage of energy emitted as a light from our household lamp, मैंने ये क्यों लिखा है 150 वाट। याद होगा बचपन में हम लोग 100 वाट का 60 वाट का बल्ब जलाते थे, सोडियम वाला है ना, 150 वाट भी जलाते थे। ठीक है, कहीं कहीं जगह पर। तो सोच रहे हो जो हाउस होल्ड लैम्प हम यूज करते हैं राइट 150 वाट का, उसका 8% लेस देन 10% एनर्जी में भी इतना फोटोन निकल रहा है। देखा 2.7 एक सेकेंड में इतना फोटोन निकल रहा है। अगर कोई पार्टिकल है, अगर हमारा दिमाग कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट हो, कोई छोटा सा पार्टिकल हो, इतना छोटा भी, तो समझ में आ रहा है। जस्ट इंट्यूशन के लिए बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, हाउ वी ट्रीट एज अ पार्टिकल, हम एक स्मॉल छोटा सा टाइनी बॉल ले लेते हैं उसको, बहुत छोटा सा। तो अगर वो भी अज्यूम करो तो एक छोटे से बल्ब से कितने ज्यादा टाइनी फोटोन्स निकल रहे हैं, एक सेकंड में इतने निकल रहे हैं, 2.7 × 10⁻19, सच अ हाई नंबर राइट। अब देखो यहां पर जो लिखा है, सुनना अच्छे से, ऊपर वाली बात लिखी है, व्हाट आई हैव एडेड हेयर इंटेंशनली हाउस होल्ड लैम्प। कैसे आइडिया लगा, 100-150 वाट तो पढ़ ही रहे, मतलब देखो ये धीरे धीरे ही आएगा, समझ में आ रहा है। लैम्प गिवन है, हाउस होल्ड लैम्प, तो ये एक इंप्रेशन बनाएगा एग्जामिनर पे कि तुम एक बेसिक तरीके से भी सोच पा रहे हो, यू आर अप्लाइंग इट इन दी रियल लाइफ ऑल्सो, और बहुत ज्यादा फालतू बात नहीं लिख रहे, तुम ऊपर वाले नंबर को एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू एक्सप्लेन द नंबर। तो इंस्टेड राइटिंग की बहुत ज्यादा है, तुम ये लिख सकते हो कि छोटा सा बल्ब से भी इतना निकल रहा है। नेक्स्ट इज light do show wave particle, but when photon interact with other particle it behaves as a particle which can be seen in many phenomena like Crompton photoelectric effect। so ऊपर वाला जो है वो क्या है, एज अ पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है फोटोन के, तो कहाँ कहाँ पार्टिकल नेचर को यूज आता है, तो Crompton photoelectric effect ये लिख दिया, ये क्लोजिंग लग रही है आंसर की। ठीक है, कम टू द 6th वन। ठीक है, ना देखो कैसे इवॉल्व कर रहा है, ये 21 का क्वेश्चन है, 21 से पहले रिलेटिविस्टिक वाले केस को नहीं पूछ रहा था राइट, दे वर आस्किंग ओनली अबाउट द नॉन रिलेटिविस्टिक केस। 21 के बाद देख रहे हो, अभी ये देखो 2021 का क्वेश्चन है, 2022 का दिखाता हूं, 23 में क्वेश्चन नहीं आया इससे, 23 में नहीं है, बट 22 का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। देखो हीलियम इज एक्सेलरेटेड बाय 300 वोल्ट, दिख रहा है। सो नाउ दे आर कमिंग ऑन द मोर ऑफ द एप्लीकेशन पार्ट, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिविस्टिक फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल वाला फॉर्म। ठीक है, दिस इज हाउ दे आर इवॉल्विंग। तो जो नोट्स में करवाया है, जितने फॉर्मूले करवाए हैं, वी हैव डन इट ऑल, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, देखो ये सब तो सेम वही लिखा है मैंने, यहां से स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन। We know that in relativistic domain total energy is what, rest energy plus kinetic energy right। ये दोनों इक्वेशन अगर तुमने पेपर 1 मैकेनिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, these are the very very elementary equation in STR right। तो क्या करना है हमें, E की वैल्यू इसको पुट कर देनी है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, सिंपल, ये काटोगे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C² से डिवाइड कर दो इधर, तो K² + 2m² + C² P की वैल्यू, सी को बाहर लगो तो सी बाहर आ जाएगी, ये बचेगी।
इसको पुट कर दोगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, तुम्हारा आ गया। ये पूछा गया था, समझ आ रहा है? तो इसमें व्हाट दे रिक्वायर्ड, दे आर आस्किंग द वेरियस टाइप, समझ में आ रहा है? यहां पे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, दे आर एक्सप्लोरिंग द टाइप्स, ठीक है? चलो नाउ फॉर इलेक्टर एज गिवन, लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखना प्लीज। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एज गिवन इन द क्वेश्चन k इज इक्वल टू 2 MeV m नॉट टू, अच्छा ये चीज हमेशा याद रखना, ये याद रखना हमेशा, दैट द काइनेटिक एनर्जी हम कैसे समझेंगे कि जो गिवन केस है वो रिलेटिविस्टिक है या नहीं है। सुनना अच्छे से, पहले तो पूछा कि तुम ये प्रूफ कर दो, ये दिक्कत है इसमें, ट्रांजिशन धीरे धीरे होता है। देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द पार्टिकल of rest mass m naught, show that the de Broglie wavelength is given by this, hence calculate the wavelength of the kinetic energy having to me, what will be the value of lambda। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई नो यू कैन सॉल्व इट इन हाफ पेज, बट 15 मार्क्स है, तुम्हें 3 पेज दिया जाएगा, यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, है ना, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो हाफ पेज तो मैंने लिख दिया कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है एक पेज में, तो 5 मार्क्स में मैंने वो कंप्लीट किया। देखो इफ यू सी दैट आई हैव वेरी इंटेलिजेंटली प्लेस्ड माय आंसर इन सच अ वे कि 15 मार्क्स का है और 3 पार्ट है, तो 5 मार्क्स और एक पेज। देखो फर्स्ट पेज में ये खत्म, सेकेंड पेज आ जाओ, फॉर इलेक्ट्रॉन एज अ गैस एज गिवन हेयर 2 MeV m नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो व्हेन इट विल बी अ रिलेटिविस्टिक केस, जब काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वो ज्यादा हो इससे, तभी तो रिलेटिविस्टिक है। When it is non-relativistic, when m naught c square से बहुत छोटा क्या हो जाए kinetic energy, right? So when the kinetic energy is comparable or more than the rest mass energy, we consider it as a relativistic case. Put कर दो, बाकी तो कैलकुलेशन है, please do check the calculation and please comment में लिखो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन we are doing, whatever you want to write लिखो and just please check the calculation and tell me कि क्वेश्चन नंबर 1 कैलकुलेशन सही है। उससे क्या होगा कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है तुम भी एक बार कैलकुलेशन कर लोगे, बाकी सबका कैलकुलेशन मैच हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, नाउ वेवलेंथ एसोसिएटेड here is very very small, that is this, although the electron is highly energetic। समझ आ रहा है इसको? ठीक है, नाउ this is what UPSC want from you guys। समझ में आ रहा है? मतलब इस लेवल का तुम्हें आंसर लिखना होगा, ये तो कोई भी कर देगा, तुम बता दो ये फॉर्मूला है, कोई भी बता देगा, फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये कैलकुलेटर ने काम किया, तुमने क्या किया, तुम्हें ये एनालाइज करना है कि इतना हाईली एनर्जेटिक 2 MeV 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुझ जैसा प्राणी इलेक्ट्रॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दे दी गई है, इतना हाई एनर्जेटिक पार्टिकल के पास वेवलेंथ क्या है, छोटा सा है। एक तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ को जस्टिफाई कर रहा है, दूसरा मैंने क्या लिखा कि मुझे पता नहीं क्या लिखा जाए, भाई तुमने फॉर्मूला फर्स्ट पेज में प्रूफ करवा दिया, उसके बाद तुम बोलो फॉर्मूला में बस के और m नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये 2 ही लाइन तो लगेगा, बट एक पेज में क्या लिखना होगा, कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। तो व्हाट वी विल डू, वी विल एनालाइज द रिजल्ट आया कि बहुत छोटा सा वेवलेंथ निकला है और हाई एनर्जेटिक है। हाई एनर्जेटिक रिजल्ट कहाँ यूज होता है, उसके छोटे वेवलेंथ के कारण। ठीक है, तो देखो मैंने एप्लीकेशन कई बार लिखवाए हैं, बस नाम, ठीक है, कई बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, रीजन डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस दैट इज गिवन, है ना। So high energy electron can be used to probe the structure of the matter at very small scale because its wavelength is very small। तुमने पढ़ा है ये सब चीजें, है ना। In radiation therapy to precisely target and destroy cancer cells, सब कुछ small wavelength and high energetic particle। high energetic मतलब very pinpoint target and precise target। देखो in radiation therapy to precisely target and destroy cancer cell, समझ आ रहा है, right? In diffraction and electron microscopy, ये देखो इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग टेक्निक सच एज ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्शन टू डिटेक्ट द ट्रेस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इवन द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स कैन बी ट्रेस्ड बाय द ECD। नो, ये मुझे आइडिया कहां से लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से मुझे तो आइडिया आया होगा ये सब चीज। इफ यू सी दी रेफरेंस बुक्स, है ना, जो क्लासेस में बताई जाती है, ये पॉल्यूटेंट्स वाला जो है ये कहीं ना कहीं जहां तक मुझे याद है गर्ग बंशल घोष में था, वो पॉल्यूशन की बहुत बातें करते हैं थर्मोडायनामिक्स में, है ना। तो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द फिजिक्स, दिस इज द वर्ल्ड, राइट। मोर यू ट्राई टू कनेक्ट इट, मोर द बेटर विल बी योर आंसर विल बी। ठीक है, मेरे लाइफ का जो सबसे
फेवरेट बुक है, दैट इज रेस्टिंग हेलिडे एंड वॉकर। आई होप तुमने क्लास 11 में शायद बनाया होगा, राइट? द फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस विद दैट बुक वाज इन द क्लास 9th। क्लास 9th में मैंने उसे सॉल्व की थी, रेस्टिंग हेलिडे एंड वॉकर, एंड दैट चेंज द परसेप्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ऑल्दो वो पढ़ने से ज्यादा मतलब yes, your perception will change, your writing skill will also change, right? Now the third, अब जो थर्ड को मैंने इसके लास्ट से स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे बस कैसे भी थर्ड पेज में इंटर कर जाना है, समझ आ रहा है? मुझे थर्ड पेज में इंटर करना ही करना है, मुझे वो ब्लैंक नहीं छोड़ना जितना पेज मुझे मिला है, राइट? तो वी हैव टू यूज दी रिसोर्सेज। सो इफ के इज, तो इसको मैंने लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी रेस्ट मास एनर्जी, देन वी कैन कॉल इट एज दी नॉन रिलेटिविस्टिक केस। मैंने डिफाइन कर दिया कैसा केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, राइट? अब मैंने इसको प्रूव भी कर दिया। देखो m0c² से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा हो गया तो वी कैन राइट अगेन क्या आ गया, h/2m m0 के, जो हमारा आता है रेस्ट मास के केस में। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव डिड, एंड ये सब जो है ना, ये सब सरप्राइज एलिमेंट है, यहां पे तुम्हें बाकी से ज्यादा अंक मिलेंगे। अब देखो, एज वी सी इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी व्हेन द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, हम लोग इसको कहां यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन विद लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो व्हेन वी सी इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंड दिस इज इन द सिलेबस में है ना, when accelerating voltage, that is the kinetic energy of the electron is increased, its wavelength decrease drastically। इतना तो तुम्हें पता है डी ब्रॉगली से, बट एक्चुअली में इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रिजल्टिंग इन इंप्रूव्ड स्पेशियल रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। समझ आ रहा है? तो ये जो तुमने एप्लीकेशन डी ब्रॉगली के साथ मिक्स कर दिया, इट इज मेकिंग योर कंक्लूजन ऑसम। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब देखो, ये सुनना अच्छे से, ये सब काम मेरा है। इन क्लास ऑल्सो, इन टेस्ट ऑल्सो आई डू दीज थिंग्स, है ना? ये ग्राफ ढूंढ कर लाना, काम करना, ये मेरा है। दिस इज नॉट योर जॉब। तो व्हाट यू शुड डू, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ जनरेट कैसे करे एग्जाम में। अगर तुम्हें पता है कि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक ग्राफ बनानी, सुनना अच्छे से, मुझे कई बार क्या होता है कि वेरीफाई करना होता है, ठीक है, इवन इफ यू यूज योर कॉमन सेंस। तुम्हें पता है हाइपरबोलिक बनना है ना? हाइपरबोलिक बनना है, यू कैन सी एट एनी के, देख लो लैम्डा किसमें ज्यादा होगी। इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस इट विल बी एट अ हायर लैम्डा देन द रिलेटिविस्टिक केस। फॉर्मूला देख लो ना, लैम्डा अपॉन √2m और उसमें क्या है, √k इंटू k + 2m0c²। तो इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस लैम्डा ज्यादा होगी एट अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड नेचर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। व्हेन k विल बी 0, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, है ना? So it will be something like this only. So these experiment you can do, right? What is the most safest place to do these experiment is the test series. Test series जहां भी ज्वाइन करो, यहां करो, कहीं और करो, अपने मास्टर्स के सामने ऐसे ऐसे ग्राफ फेंको। अगर मान लो वो चेक नहीं कर रहे हैं, या उसको इग्नोर कर दिया, या उसको कुछ भी काट दिया, तो उनसे स्पेशली पूछो कि सर जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, क्या ये बना सकते हैं एग्जाम में? ठीक है, सो दीज विल बी योर कुछ चीजें जो बाकी उसे इन कंपटीशन यू हैव टू जस्ट बीट योर कंपटीशन, मतलब तुम्हें आसपास के लोगों से अच्छा लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो जब ये कॉपी जाएगी, ठीक है, देखना, एक चीज मैंने पहले ही बताया है कि व्हाई यू शुड राइट लाइक दिस, क्योंकि बहुत खराब नंबर बहुत खराब कॉपीज आ रही है किसके पास, 10 कॉपी खराब आ गई, उसके बाद ये कॉपी आएगी, तो उनसे एवरेज ज्यादा तुम्हारे पास मार्क्स आएगा। अगर पहली कॉपी तुम्हारी आ गई, उसके बाद बाकी खराब कॉपी आ गई, तो एवरेज मार्क्स उनका कम हो जाएगा। इन बोथ केसेस तुम एच पे हो। ठीक है, देखो, व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट? दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स एंड इट इज आस्किंग व्हाट इज डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, राइट? इफ यू सी योर नोट्स, इन नोट्स आल्सो वी हैव इवॉल्व्ड लाइक दिस ओनली, है ना? फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, देन वी हैव कम टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एंड फ्रॉम द हाइपोथेसिस वी हैव टेकन इनटू द मैटर वेव, राइट? सो फर्स्ट you will like write the de Broglie hypothesis. What do you mean de Broglie hypothesis? उसके बाद तुम कहोगे de Broglie concept of matter wave, because from the de Broglie hypothesis we are coming here. जो पहला लाइन लिखा है मैंने, wave associated with moving particle, it is the de Broglie hypothesis, right? If you want to cut, you can cut the above also. ऊपर वाला पार्ट को तुम कट कर सकते हो थोड़ा बहुत, it's up to you. मुझे थोड़ा हॉलिस्टिक लिखना था इसलिए मैंने लिख दिया है, बट यू शुड नॉट कट दीज पॉइंट जो मैंने लिखा है, यू हैव टू राइट इट। सो नाउ फर्स्ट थिंग कि व्हेन वी टॉक अबाउट द मैटर वेव,
अगर हम मैटर वेव बोल रहे हैं, राइट, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, सुनते थे, वेव वेयर समथिंग इज ऑसिलेटिंग, व्हाट इज ऑसिलेटिंग हियर, व्हाट इज ऑसिलेटिंग इन मैटर वेव, so it is the probability density. ठीक है, in the next video or in the next video we will be solving Schrodinger equation, expectation value question, उसमें probability density की बात करेंगे, उसमें भी बहुत उसके अच्छे अच्छे ग्राफ्स हम लोग करेंगे और conclusion सीखेंगे, समझो अच्छे से. So it is the probability density that is oscillating in a matter wave, right? It is represented by a psi which represents state. समझ में आ रहा है? तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव हो सकता है, उस वेव का एक अपना स्टेट होगा, राइट, एंड उस वेव में क्या ऑसिलेट करती है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. दीज आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ हैविंग अ मैटर वेव. ठीक है, इसके बाद डू नॉट ओवरडू. लास्ट ईयर किसी ने क्या किया था कि मैटर वेव साई की प्रॉपर्टी लिख दी थी, स्क्वायर इंटीग्रेबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सब लिखना है. ठीक है, मैटर वेव यू हैव टू वर्क ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, नॉट ऑन द साई. साई इज अ वेव फंक्शन. दे हैव आस्क्ड अबाउट द मैटर वेव. ठीक है, तो मैटर वेव के बारे में कम पता था लोगों को, तो उन्होंने वेव फंक्शन के बारे में बहुत लिख दिया. चलो, नाउ वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, मूविंग चार्ज व्हेन अ पार्टिकल. अच्छा, एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में एक क्या फ्लॉज था. इवैल्यूएट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम. अब हीलियम एटम है, हीलियम आयन है, इज एसिलेटेड थ्रू दी 300 वोल्ट. ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि हीलियम आयन है, मान लिया है, यहां पे लिखा नहीं है. अगर ये हीलियम एटम होता और उसको तुम एसिलेट कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, अनचार्ज पार्टिकल है, किसी पोटेंशियल से तुम उसको पास भी करवा दोगे तो कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा. ठीक है, बट यहां पर लिख लेना हीलियम आयन, क्योंकि एग्जामिनर शायद हीलियम आयन सोचकर इसने फ्रेम किया है. नहीं तो एक क्या ऑप्शन है, तुम हीलियम आयन मान के बना दो और लास्ट में लिख दो कि अगर ये एटम होता तो कोई चेंज नहीं आता पोटेंशियल में, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आता, तो इसके एसोसिएटेड कोई भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं लिख सकते हैं. बट दैट इज नॉट द केस. आई नो दैट यहां पे उनसे आयन या तो छूट गया है या फिर वो हीलियम को मान रहे कि लोग अल्फा पार्टिकल मान लेंगे, हीलियम He2+ मान के बनाएंगे. ठीक है, ये सब होता है जब डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं इंडियन ऑथर के बुक से, तो ये सब दिक्कत आती है. ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एक बेसिक क्या लिख दिया यहां पर, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत है ना. तो ये छोटा सा माइक्रो डायग्राम बना दिया मैंने कि दो K0n K इक्वल्स टू QV. एक V का पोटेंशियल है तो इतना होगा. खैर, तुम्हें पता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इनटू Q इनटू V. मास ऑफ हीलियम जो भी है Q इनटू V पुट करो, लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस. कुछ है ही नहीं इसमें, क्या ही करोगे, बस कैलकुलेशन कर दो. द सेम क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन दी लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. लास्ट मैंने क्या डाल दिया, यही वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का क्या मतलब है, पार्टिकल हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, नाउ जहां तक आ गए हो, तो दिस वी हैव फिनिश दी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. ठीक है, अगर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज उसको कमेंट कर देना. आज के आज ही कर दोगे तो फायदा क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो से पहले उसको पढ़कर मैं बता दूंगा, है ना. कोई भी टाइप का क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी ऐसा कुछ लगे, एंड प्लीज बी स्पेसिफिक. ये मत पूछा करो सर व्हाट शुड बी दी स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फिजिक्स ऑप्शनल. भाई साहब तुम इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछ लेते हो, डोमेन का मतलब कैसे आएगा, है ना. प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक. क्वेश्चन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में ये कैसे हुआ है. वट एवर योर डाउट सजेशन कमेंट. तो देखो यार, ये जो है वीडियो जा रही है यूट्यूब पे. ठीक है, बाकी कोर्सेज लॉन्च होते हैं तो उसमें तो मोटिवेशन फैक्टर होता है एनरोलमेंट. यहां पर कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए मेरी तरफ से. मोटिवेशन से ज्यादा तुम कह लो कि क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेशन फैक्टर कह लो एक तरीके से, है ना, कि मुझे रेसिप्रोकेशन होना चाहिए कि तुम भी ये चाह रहे हो क्या ये ऐसा होते रहे, है ना. तो अगर चाह रहे हो कि इस तरीके से आते रहे वीडियोस और हम लोग सॉल्व करते रहे, तो वो रेसिप्रोकेशन करते हो तो अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं. ठीक है, तो टुडे वी हैव फिनिश्ड 7 to 8. टुमारो नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग श्रोडिंगर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला चीज है तो सॉल्व करना. अगर नहीं किया है तुमने तो फिर सॉल्व कर लो. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 तक करेंगे कल हम लोग. ठीक है, ये तुम्हें लग रहा होगा सब अलग अलग क्वेश्चन है, बट दे आर अलाइक, दे आर गुड क्वेश्चन. बहुत कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लाइक दिस राइट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर ऑफ बाउंसिंग बॉल. बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं श्रोडिंगर क्वेश्चन एक्सप्रेशन वैल्यू में. ठीक है, सो दिस कितने क्वेश्चन हो गए, ये ऑलमोस्ट हो गए 10-11 क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल करेंगे, राइट. तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, बाय बाय.